everyone. Today in this video I'll be talking about how to write a good answer in surgery exam just by studying one day before exam. So this is not for everyone, but someone who has not studied whole round year due to any issue can see this video and write the answers effectively even by studying just one day before exam. So any answer in any exam consists of 4 or 5 parts in medicine. It includes like definition, etiology, clinical features, and management includes 2 parts, investigations and treatment. Now, as in medicine, there are system-wise answers. In surgery, you have only 2 types of complaints. Either the complaint is traumatic or some acute or chronic problem is there that is presenting feature. So now we'll see how to approach an answer in surgery exam. So just begin with definition. So we'll begin with definition. For definition to know one day that I have contributed for the study, that is in that day you have to just study the various topics by their definition. At least know the important topics in surgery and just read out their definition. Now by reading the definition you will come to know the system to which it belongs and the type of disease it is. That means type of disease will now give you a hint on the etiology of the disease. So the second point is etiology. अब मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में इटियोलॉजी ऐसे रहती है कि ईडियोपैथिक होता है या फिर इन्फ्लेमेटरी होगा या फिर कोई टॉक्सिन या ड्रग इंड्यूस्ड होगा या फिर कंजेनाइटल हो सकता है, ट्रोमैटिक हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट की वजह से हो सकता है या इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है. रफली मोर और लेस यही सारी इटियोलॉजी रहती हैं. अब इनमें स्पेसिफिसिटीज़ हो जाती हैं कि इडियोपैथिक तो वैसा वैसा ही रहता है. इन्फ्लेमेटरी आपको बता सकते हैं कि किस मतलब कैसा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कि लाइक इट इज़ पैंक्रेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस और समथिंग एल्स. तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस सिस्टम का इन्फ्लेमेशन है या फिर किसी ड्रग की वजह से हो रहा है या फिर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है. सो मोर और लेस इटियोलॉजी यही 4-5 पॉइंट रहता है. तो अगर आप रफली इनको उठा के ऐसा एज इट इज़ लिख दोगे कोई काट नहीं सकता, कोई कहेगा नहीं कि ये गलत इटियोलॉजी है. सो यू कैन ऑलवेज राइट इट देयर. And when you will study the definition of the disease, you come to know what is the pathology or what is the etiology behind it. Basically, like if you study this appendicitis, you will come to know there is inflammation, so there will be inflammatory pathology will be there. So you can write out then, and simply by reading the definition you can also come on to the next point, that is clinical features. Basically surgery में the clinical features are more or less pain, swelling, ulcer और ट्रॉमा और एनी सिस्टमिक कंप्लेन. सो सिस्टमिक कंप्लेन बहुत रेयरली होता है. पेशेंट ज़्यादातर पेन या फिर स्वेलिंग या फिर अल्सर या फिर ट्रॉमा के साथ ही आते हैं. ठीक है. मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी बहुत रेयर होता है. ठीक है. और सिस्टमिक कंप्लेंट्स, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट बहुत रेयर चीज़ होती हैं. तो अब पेन को भी उन्हीं 5 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं कि ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, एक्टिवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर. स्वेलिंग के भी वही सारे 4-5 पॉइंट्स हैं. अल्सर के भी 4-5 पॉइंट्स हैं. तो आपको अगर इतना पता है कि पेन, स्वेलिंग, अल्सर होता है तो आप हर डिजीज़ में लिख सकते हो हाँ इसमें पेन होगा, इसमें अल्सर होगा, इसमें स्वेलिंग होगी. तो इफ़ यू नो लाइक अबाउट appendicitis you can say there is pain. Now you have to localize the pain. भी पेन है कहाँ पर. So for that you need to know the general anatomy कि ये structure located कहाँ होता है. रफली वहीं पर कहीं पेन होगा. So definition से आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी. Just focus on surgical anatomy also. If you focus on surgical anatomy you can have much more idea. So read the definition, read the surgical anatomy. These 2 things will give you a great amount of detail for writing your answers. Just these 2 things, because this will tell you about that system in which it is involved, the disease, type of the disease, roughly etiology also, and roughly about the pathogenesis, roughly about the clinical features and location. उसकी सब कुछ पता चल जाएगा सिर्फ इन 2 चीज़ों से. So these are 2 very high yielding things, definition and anatomy. Okay. So after we are done with definition, etiology, clinical features, then we come on to the investigation. This is the management part. Always put the heading management and then write the investigations first and then treatment second. So investigations, basically there are certain general investigations like the complete blood count, that includes hemoglobin count, TLC, DLC and all that things. And then you can do for infections, you can do ESR, CRP. Then depending on the system involved, you can do always an X-ray, USG, CT, MRI, ERCP, MRCP, biopsies and all those things you can do. But and also you can do them for the
sake of like most of the times you have tumors in surgery. So in tumors you can do all the investigations, no matter number of investigations, जो भी आपको चाहिए वो सब कर सकते हो आप. कोई भी एग्जामिनर आपके थ्योरी के पेपर में आपकी इन्वेस्टिगेशंस को काट नहीं देगा. आप जितनी मन चाहो उतनी इन्वेस्टिगेशंस लिख सकते हो, ठीक है. एंड टू better way of presenting your answer for management is like show it to be a clinical case, as if you are presenting a clinical case. So how do you present your clinical case? You begin with a general examination, then you go on to the system or local examination. So always general examination consists of pallor, icterus, clubbing, cyanosis, lymphadenopathy, and edema. Say that for the management of this patient, I was first like to take out the clinical history and do the examination of the patient, which history will include all those clinical features and clinical features, things, signs and symptoms. And then the treatment part, the इन्वेस्टिगेशन पार्ट विल फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें आप ये मत बताओ कि आप उनकी फाइंडिंग क्या है, बस आप ये बताओ कि आप देखोगे क्या क्या. तो वो तो बता सकते हो ना कि पैलर, एक्ट्रस, कपिंग, साइनोसिस ये सब देख रहे हो, ठीक है. उसके बाद देन गो टू द वाइटल्स. मत बताओ कि वाइटल्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, आपको नहीं याद है मत लिखो, लेकिन ये तो बताओ कि वाइटल्स देखोगे. फिर ये बता दो कि और अच्छे से लिखना आंसर, तो ये बता दो वाइटल्स में क्या क्या देखोगे. जैसे कि पल्स में हमको देखना होता है रेट, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टर, यानी कोई रेडियो रेडल डिले, रेडियो फीमेरल डिले, तो ये सारी चीज़ें बताओ. फिर उसके बाद जैसे बीपी लोगे तो बीपी को किस पोजीशन में लिया, किस हैंड में लिया और कितना बीपी आया. सेम विद गोज विद टेम्परेचर, कि आपने कितना टेम्परेचर आया और किस मतलब कहाँ पर लिया, एक्सिलरी लिया था, रेक्टल था, ओरल था, कैसा था. और रेस्पिरेटरी रेट में आपको बताना होता है कि रेट क्या है, रिदम क्या है और उसका किस टाइप की है, एब्डोमिनोथोरैसिक या थोरैको एब्डोमिनिक कैसी है, वो बताना होता है, ठीक है. उसके बाद गो ऑन टू इंस्पेक्शन. अगर स्वेलिंग है तो उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो इंस्पेक्शन में, फिर पैल्पेशन में, फिर परकशन और फिर ऑस्कल्टेशन में. अगर वो कुछ और है जैसे कि अल्सर है तो फिर उसके पॉइंट्स में रेफरेंस में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन गोज ऑन, ठीक है. पेन तो अकेला नहीं होगा ना, तो पेन अकेला होगा तो फिर वही होगा ऑनसेट लोकेशन ड्यूरेशन, नथिंग एल्स. उसके अलावा आप यू कैन गो विद अ जनरल एग्जामिनेशन ऑफ दैट कंसर्न पार्ट. मोस्टली पेन होगा तो एब्डोमेन में होगा, सो यू कैन गो विद द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन जनरल, ओके. फिर आप आते हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है. और ये हाँ क्या क्या पॉइंट्स होंगे इसमें, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ लो, स्वेलिंग और अल्सर, उसी में सारा कुछ मिल जाएगा कि स्वेलिंग के क्या पॉइंट होते हैं, पैल्पेशन अल्सर के क्या पॉइंट होते हैं. और ज़्यादातर आपके सर्जरी की प्रॉब्लम्स होंगी वो इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. फिर आता है ट्रीटमेंट पार्ट. सर्जरी में 2 ही तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, या तो एक ये वाला ABCD फॉलो होता है या दूसरा ABCD फॉलो होता है, ठीक है. बेसिकली अगर ट्रोमेटिक केस आया कि एक पेशेंट था जिसकी ट्रोमेटिक इंजरी हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो शॉक में चला गया, तो आप पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, लिमिटेशन ये सब करते हो, ठीक है. फिर स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है जो डिपेंड करता है कि क्या दिक्कत, कहाँ पर दिक्कत हुई उस पर, लेकिन शुरुआत में तो आपको ये इतना लिखना होता है. और अगर वो कोई ऐसी दिक्कत के साथ जैसे अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैंक्रेटाइटिस, इन सब चीज़ों के साथ आता है, तो आपका ट्रीटमेंट ऐसे होता है कि पहले एस्पिरेशन करो, बोवल और ब्लैडर की केयर करो, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करो, ड्रग्स को देखो, ड्रग्स में बेसिकली एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स से दोगे. फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटरी लेप्टोटमी कर दो, और या फिर अगर कोई छोटा सा मतलब स्वेलिंग है तो उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हो और इससे IV फ्लूइड्स चढ़ा सकते हो. तो ऐसे कोई भी पेशेंट आता है तो आप ऐसे लिखोगे कि पेशेंट केम फॉर सर्जरी, एडमिट द पेशेंट फर्स्ट थिंग, गिव द निल पर ओरल, स्टार्ट निल पर ओरल. निल पर ओरल हो गया तो अब IV एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स पहले स्टार्ट कर दो बाय सिक्योरिंग 2 लार्ज IV बोर लाइन्स. Then start the IV antibiotics, start analgesics and then do the exploratory laparotomy. अगर कोई छोटा मोटा डिजीज़ होगा तो जो माइनर ओटीज़ में ट्रीट होता है तो उसमें सिंपली हम एक्सेशन कर देते हैं, ड्रेनेज, या फिर कभी कभी इंसेशन ड्रेनेज, कभी कभी एक्सेशन, यही सारी चीज़ें होते हैं. कुछ सर्जरी स्पेशल होती हैं तो आप हर से जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके साथ जाके ट्रीटमेंट पार्ट में 1-2 स्पेशल सर्जरी याद कर लो हर एक की. अब जैसे हर्निया में अगर आप जाओगे तो 3 तरह की सर्जरीज होती हैं, हर्नियोटमी, हर्नियोरैफी और हर्नियोप्लास्टी. आजकल सिर्फ हर्नियोप्लास्टी का चलन है, तो आप हर्नियोप्लास्टी में पढ़ लो कि क्या क्या हर्नियोप्लास्टी कर सकते हैं. तो ऐसे ही 2-3 सर्जरीज हर जगह याद कर लो. जैसे कि वहाँ पर करते हैं लिंचेस्टीन मैश रिपेयर, टेंशन फ्री मैश रिपेयर सर्जरी करते हैं, ठीक है, मैश रिपेयर हर्नियोप्लास्टी. तो आप ऐसे 2-3 हाईफाई नाम याद कर लो, ठीक है. जैसे कि आप उसमें जाओगे ब्रेस्ट में तो वहाँ पर मैस्टेक्टमी करते हैं, तो
इस तरह से हर ज़्यादा डिजीज़ तो है नहीं सर्जरी में। सर्जरी में देखो मोर और लेस यू हैव 4-5 पार्ट्स, वन इंक्लूड द जनरल सर्जरी। इसमें से सबसे ज़्यादा वुंड हीलिंग, अल्सर, शॉक और स्वेलिंग। छोटी छोटी स्वेलिंग्स पे तो शॉर्ट नोट आता है बेसिकली जनरल में। बाकी तो मेन तो 2 चैप्टर होते हैं, एक शॉक एक वुंड हीलिंग जनरल सर्जरी में। उसके बाद ब्रेस्ट में आ जाओगे तो ब्रेस्ट में बेसिकली ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के पास फोकस करना होता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी हमको उसका रिस्क फैक्टर्स, उसकी TNM स्टेजिंग और उसका ट्रीटमेंट जाना होता है। TNM स्टेजिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिकली पूछा जाता है, पर TNM स्टेजिंग की अच्छी बात है कि हर डिजीज़ की TNM स्टेजिंग नहीं पढ़नी होती है। आपको मेनली मोटा मोटा आपको थायराइड, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट में ही TNM स्टेजिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, थायराइड, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। बाकी किसी में ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता घुस के TNM स्टेजिंग। और अगर TNM स्टेजिंग आएगा भी तो कोई शॉर्ट नोट तो आएगा नहीं TNM स्टेजिंग पे। लॉन्ग क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा, तो अगर आपने इतनी सारी चीज़ें लिखनी तो 10 में से आपको 6-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पास तो हो जाओगे। सो दिस वीडियो वॉज मेंट ओनली टू tackle how to write answers in surgery. It can be useful for anyone who is studying whole round year also, and who's studying just one day before the exam also. Because if you're studying whole round year, then also you get to know what are the points, important points that you need to include in this answer, in surgery answers. And if you're just studying one day before, then go with all the topics, read the definition, the anatomy, and in the treatment part read only 2 to 3 surgeries which are having fancy names. And if you can have a good eidetic memory, just have to look at any specific symptom or any specific sign, just 2 to 3 for every disease. And there will be only roughly 18 to 20 topics in surgery जो long questions की तरह आते हैं surgery में. You cannot manage all short questions, but you can manage roughly all long questions. तो long questions prepare हो जाएंगे, long questions हो गए तो आपका roughly short notes निपट जाएगा। क्योंकि देखो जितने अगर 18 से 20 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उसमें से पेपर में तो 4 ही क्वेश्चंस आएंगे, 2 पहले पेपर में, 2 दूसरे पेपर में। तो बाकी जो 20 क्वेश्चन में से 4 गए तो बचे 16। वो 16 जो टॉपिक्स हमने लॉन्ग के लिए पढ़े थे उनके सब पार्ट्स आएंगे शॉर्ट नोट्स में। तो मोरलेस आपका पेपर अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया है। और बस आपको पढ़ना क्या क्या था, बस यही 5-6 पॉइंट्स पढ़ने। तो आप एक पन्ने पे उठा के लिख लोगे कि हाँ अपेंडिसाइटिस में पहले डेफिनेशन लिख ली मैंने, 2 लाइन की टियोलॉजी लिखी, लोकेशन उसकी देख ली, रेट्रोसिकल ये वो, और फिर उसके बाद 1-2 क्लिनिकल साइन। और स्पेसिफिकली उसमें 2 तरह की अपेंडिसेक्टमी होती हैं, एक इंटरवल और एक इलेक्टिव। आपने इंटरवल अपेंडिसेक्टमी का इंसेशन पढ़ लिया, उसमें कौन सा लगाते हैं उसको कहते हैं लायंस इंसेशन। और इसी तरह से अपने इलेक्टिव आपने उसका इमरजेंसी अपेंडिसेक्टमी का भी पढ़ लिया, आपने उसका नाम लिख दिया वहाँ पर। दैट इज़ मोर देन इनफ। ये एक पन्ने का काम है, एक पन्ने आपको 1 घंटा लगेगा बस स्टडी करने में। अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करें 1 घंटा तो बहुत होता है अपेंडिसाइटिस के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू अप्रोच आंसर। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।